I want to create a software where you can merge physics-based models which are well established and are used by this industry, combine them with data, machine learning and AI. आप ये काम करते कैसे हो? How does that software work? कई सारी चीज़ें होती है बट हम ये सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं. आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर हम कस्टमर को वैल्यू देते हैं देन आवर प्रोडक्ट्स विल बी अडॉप्टेड. तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं? मे बी नॉट टुडे बट टुमारो. आज एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोन देते हैं दे डोंट नो हाउ टू प्राइस देयर प्रोडक्ट. लीजिंग वेंडर को ये पता नहीं है कि ये बैटरी कितने साल चलेगी, राइट? तो उसीलिए लोन्स आर एक्सपेंसिव. इट हर्ट्स अडॉप्शन. कहाँ पर आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को और थोड़ा पुश करना चाहिए? वेयर डू फाइंड दैट गैप एंड वेयर डू सी कि अगर पॉलिसी में ये सारी चीज़ें अगर ऐड हों तो इट विल ब्रिंग अ बिगर अडॉप्शन? वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन आई मस्ट से, क्योंकि यू ऑलवेज फील लाइक द गवर्नमेंट शुड डू मोर. गवर्नमेंट सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है, जैसे यू हैव नॉट सीन इन द पास्ट. सो आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग बिग. Hello everyone, welcome to another episode of The Vision Grid. Today we have another interesting founder with us, one of my, I'd say, close friend, Vineet Dravid. How are you doing, Vineet, today? I'm doing well, thank you, and thanks for inviting me. Yeah. So Vineet, how it all started, and we want to understand more about your initial journey. I would say it all started a very long time back. I've been in this industry for over 2 decades now. I started my journey in the US. In the US, I used to work for a Swedish company which was in the simulation software space. And thanks to that company, I was immersed into various applications, right? So this whole industry is called the computer aided engineering industry, the CA industry. That's where I started. And these tools are used anywhere you want to design new products, you want to optimize the design of new products, or you want to optimize processes. You want to capture how your new products are going to behave in a real world environment, and you want to optimize them before you start prototyping them, right? Yeah. So that is done using physics-based simulations, which is the industry I started my career in. And I was fortunate enough to work across a range of problems. I have worked with, companies in the aerospace vertical where, you make rockets and aeroplanes across the world, all the way to, of course, automotive manufacturers and drug companies which make drugs, all the way to FMCG. I've even worked on projects where companies wanted to optimize the amount of time they fry a chip, so that they can minimize the energy and maximize the crispness of the chip. Wow. So I've seen the range of applications when it comes to how you can create an impact using computer-aided simulations across geographies as well. So I've had the good fortune of working in North America with customers in Europe, East Asia, and of course in India. I came back to India in about, I think I would say late 2008, where I started the Indian operations of the company I was working in the US. And then I had the good fortune of understanding how to grow a business in India. Of course, I worked with the brand that I was working with, so I had the benefit of an existing multinational brand and growing the business in India. And as our operations in India started maturing, I realized that I wanted to do more, simply because the big reason I came back to India is I've always been a strong believer in the India story. I would love to give back to my roots, and I believe there's a lot of potential in India to do some really good quality research and just make an impact on the world, which of course way back in the early 2000s was not as well recognized, but today you see the kind of impact Indians are making across the world. That was the goal. Yeah. So that's why I had come back, and then I said, you know what, let's make our own product from India so that we have an Indian product in the software space, because we are, of course, world over, we are known as
people who are great with IT. But when it comes to software products, how many products do we have from India? Right? I mean, of course, today now we have products like Zoho and a couple of others, but you can count them on the tip of your fingers. Okay. I wanted to create a product in the software space. Then I also wanted to sort of take the whole computer-aided engineering industry into new age. What I mean by that is the whole CA industry works on physics-based modeling, which is how we've been doing this for the past 60, 70 years now. Very little has changed. But the reality is, thanks to IoT and digitalization, generating data today is much, much easier than it was even 20 years back. Yes. So you can quickly generate data now, high fidelity data. And thanks to machine learning and AI, you can now, even if you have small amounts of data, you can extract a lot of information from it and use it, which you couldn't do earlier. Yeah. So I want to create a software where you can merge physics-based models, which are well established and are used by this industry, combine them with data, machine learning and AI, and create a new age tool for engineers and designers, which can enable them to speed up their product design like never before. I want to create, in a nutshell, Google for engineers. Great. So that's the genesis of Urja. Amazing. So Vineet, there are a mix of audience that I have. So there is certainly some audience that want to understand that when we talk about your solution, what can it do? Suppose let us pick battery, right? So what can Urja software do and help in a layman's language that they would like to understand? Sure. For their say, I have used your product, right? And we have met for since some time. So for their understanding, could you please For share? sure. Yeah. So again, when it comes to Urja, today we have, I would say, two verticals. So one vertical is the Urja battery design apps, and the other is what we call the Urja Battery 360, which is for monitoring batteries. So let me start with the design apps. We have a suite of applications, and our objective, first of all, before I talk about what problems we can solve, like I said, the larger picture that we are going after is, like I said, taking the world, enabling the transition towards new technology. In this case, it is new energy. We are all making that transition from fossil fuels to new age fuels. And therefore, we wanted to make this transition easy for for the whole world. We are technologists. So, of course, the first customer I look at is, it's a B2B company that we have. Okay. So our customers are large enterprises, OEMs and tier 1 and tier 2 suppliers to OEMs. And our goal was to enable them to make this transition smoothly, right? Okay. So the first suite of products that we had is the Urja battery design suite of apps, which is used to optimize their battery design. So the outcome is you are able to save money, save time, and get the best battery out there. That was the goal. The users for that are engineers and designers in large companies or startups or whoever it is, right? So the first set of tools that we have, the software suite that we have, is used for design optimization. And the way it works is the designers have some specifications in mind. They know how large, what kind of output you want from the battery. You have some specifications that the battery should last 3 years, or it should last 7 years or 10 years, depending on the application. They know what kind of a usage there is going to be, how much load is going to be imposed on the battery, right? How they want it charged. Yeah. Some people say that I want charging in 40 minutes. Others say I want charging in 70 minutes, for instance. These are all the specifications. You can just dump these specifications in our user interface and you get an optimized design. Which kind of cells do you use? How to design the whole pack? How to design the limits for your pack, right? What should the depth of discharge be? What should the maximum voltage, the Vmax and Vmin be? So you get all of these insights based on which you can say, okay, now I know how I can design my pack in peace. It's going to be safe. It's going to give the performance that my customer needs, and it is going to last the life of the pack. Lovely. And it is optimized for price.
This is what the first vertical of tools does. Wow. So shall I understand that it completely gives a base for the mechanical design and maybe electronics and other things also? So am I understanding correct? Thanks. Yeah. So perfect. Exactly. So it gives you a recipe for assembling your battery pack. Okay. In the background, we perform a comprehensive electrochemical analysis, a thermal analysis, the accompanying flow and electrical analysis, which enables you to take intelligent decisions on the pack configuration and on the operational configuration of your battery. Okay. Right? So yes, you get a recipe for what the battery pack should be, so that you can ensure that you meet the safety criteria of, let's say, whichever geographic region you're operating in. You meet the performance criteria that your customers expect of you, and you meet the life criteria which you are guaranteeing your customers. And considering all this kind of safety measures. Safety as well, correct. Yeah. So जब आपके सॉफ्टवेयर से अगर कोई डिज़ाइन बनता है तो आपने कहा कि आप इंश्योर करते हो कि सेफ्टी रहेगी एंड एज पर द रिक्वायरमेंट कि कितने दिन कितना लाइफ बैटरी का रखना है, राइट, कौन सी केमिस्ट्री का सेल्स यूज़ करना है, और जो परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है एज पर द यूज़र, उसके हिसाब से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बैटरी के पैक के डिज़ाइन को रेडी करके देता है, एंड इट गिव्स द बेसिक रेसिपी फॉर द असेंबलिंग ऑफ द बैटरी, राइट. नाउ अभी जब हम ये कर लेते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली बहुत सारी, जब तक हम फील्ड में उसको टेस्ट नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो बैटरी ठीक से काम कर रही है, बिल्कुल करेगी या नहीं करेगी, राइट. तो उससे क्या टेस्टिंग से रिलेटेड भी आपका सॉफ्टवेयर कुछ हेल्प करता है? बिल्कुल. सो व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग, एक तो ये है कि हम खुद टेस्टिंग नहीं करते, ठीक है, बट टेस्टिंग ज़रूरी है. आई मीन, आप अगर कोई प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहे हैं तो आप बिना टेस्टिंग के तो वो रिलीज़ नहीं करेंगे. हमारे कस्टमर्स जो है दे आर अक्रॉस द वर्ल्ड. तो हमारे कस्टमर्स यूरोप में भी है, यूएस में भी है, जापान एंड ऑफ कोर्स इन इंडिया. तो वी हैव द गुड फॉर्चून कि हमें पता है कि हर कॉन्टिनेंट में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, राइट. तो जैसे आप अगर यूएस या यूरोप देखेंगे तो उनके टेस्टिंग प्रोग्राम्स एक्सटेंसिव होते हैं. उनकी जो लार्ज कंपनीज होती है जो कार्स या ट्रक्स या बस बनाती है, उनके सेल टेस्टिंग प्रोग्राम 2-2 साल चलते हैं, राइट. और दे कीप गेटिंग न्यू सेल्स. हर 6 महीने उनके पास नए सेल आते हैं उनके सप्लायर से. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है उनकी. तो टेस्टिंग तो ज़रूरी है, यू कांट डू अवे विथ इट. जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं वो है कि वी कैन हेल्प यू रिड्यूस योर टेस्टिंग. जहाँ पे आप 2 साल टेस्ट करते थे, वहाँ पे हम आपको 6 महीने में वो टेस्ट करके देंगे, राइट, थैंक्स टू द इंटेलिजेंस दैट वी ऐड फ्रॉम आवर प्रेडिक्टिव मॉडल्स. तो ये बेनिफिट हम दे सकते हैं. सेफ्टी टेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. तो आप वो 10 बार तो नहीं कर सकते. आप 1 टेस्ट करोगे, 2 टेस्ट करोगे, करेक्ट. बट डिज़ाइन के टाइम आपको ये देखना है कि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेफ्टी पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो इसके लिए शायद आपको 3-4 से ज़्यादा टेस्ट करने पड़े. बना के एक्चुअली बैटरी देखने की ज़रूरत नहीं है. एग्जैक्टली. आप पहले उसको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे करेक्ट डिज़ाइन करते हो, चेक करते हो कि बैटरी बनी, अगर इस तरह से बैटरी बनती है तो कहाँ हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, या कहाँ पे IR बढ़ रहा है, राइट. वो सारे पैरामीटर्स सॉफ्टवेयर बता देता है. फिर चेंज किए जाते हैं और जो एक ऑप्टिमम मॉडल दिखाई देता है फिर उसका एक हम फिजिकल मॉडल बना के देखते हैं. एब्सोल्युटली. तो इस तरह आपका स्पीड अप भी होगा, क्योंकि आपको जहाँ 10 प्रोटोटाइप बनाने थे आपको 3 प्रोटोटाइप बनाने पड़ेंगे, और पैसे भी बचते हैं. यस. सो विनीत, यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ लार्ज स्केल कंपनीज, राइट. तो मैं क्या समझना चाहता हूँ कि आपके सॉफ्टवेयर से ऑब्वियसली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं. तो मैं समझना चाहता हूँ कि रिसेंटली अगर आपने किसी कंपनी के साथ में काम किया हो और कोई लेटेस्ट कोई प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व करी हो तो हम उसके बारे में समझना चाहते हैं. श्योर. यू आर राइट. आई मीन, मेजॉरिटी ऑफ आवर कस्टमर्स आर लार्जर OEMs, and we help them a lot with their early stage R&D. तो I think हाल ही में the kind of problems we've solved is कि with a commercial vehicle maker, तो उनके जो vehicles उन्हें launch करने थे, we have helped them come up with warranty estimates. क्योंकि problem क्या होता है कि आपको
सेल मेकर कोई वारंटी देगा, बट वो सेल वारंटी वैलिड होती है लैब कंडीशंस में। तो वो बोलेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप इस कांस्टेंट चार्ज रेट पे और डिस्चार्ज रेट पे यूज़ करते हैं, करेक्ट, तो ये 2000 या 3000 साइकिल चलेगी। अब दिक्कत ये है कि रियल लाइफ में तो आप कभी 25 डिग्री पे ऑपरेट करोगे नहीं। रियल लाइफ में तो करंट फ्लक्चुएट, मतलब सी रेट्स कीप गोइंग अप एंड डाउन, और एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गया जल्दी तो ब्रांड तो OEM का अफेक्ट होता है। तो कोई नोबडी ब्लेम्स द सेल मेकर, कोई ये नहीं बोलता है कि सेल खराब था और उसी लिए प्रोडक्ट घटिया है। वो तो बोलते हैं कि इनका प्रोडक्ट घटिया है। वाइल लीगली वारंटी तो सेल मेकर की है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है OEM को, और वहाँ पे वी हेल्प देम अंडरस्टैंड कि अगर आपकी ये ड्यूटी साइकिल है, जैसे उनको पता करना था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए था, तो ये जो व्हीकल्स थे समझो कि ये घाट पे जा रहे हैं, तो घाट पे तो ड्यूटी साइकिल अलग होगा, आपको कांस्टेंट हाई पावर लगेगा, कांस्टेंट, ओके, है ना, जो आपको शायद रेगुलर सिटी में नहीं लगे। तो अगर हम सिटी के लिए बैटरी डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये घाट पे कैसे परफॉर्म करेगी, उनको ये समझना था। इससे घाट की रेंज पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ओके, क्योंकि आपको तो ज़्यादा पावर लगेगी, और हम बैटरी तो डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर फ्लैट टेरेन इन द सिटी, तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, और इसके लिए व्हाट प्रोटेक्शन विल वी हैव टू पुट इन द व्हीकल, ताकि घाट में ये बीच में अटक ना जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है बैटरीज़ का कि देखिए आपको पावर चाहिए। अब इंजन में तो आपका पेट्रोल या डीजल है आपके व्हीकल में, आपने एक्सेलरेटर पे पैर दबाया तो ज़्यादा फ्यूल मिल जाएगा और आपको जो चाहे पावर मिल सकती है। ऑफ कोर्स आल्सो इन कंबाइंड विद द गियर दैट यू पुट द ट्रांसमिशन की हेल्प से। बैटरी में थोड़ा अलग है, आपके पास फ्यूल नहीं है, आपके पास गियर्स नहीं है, तो आपको अगर पावर चाहिए, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ द SOC। SOC होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज इन योर बैटरी। तो जब आपकी 100% चार्ज होती है तो आपका SOC समझ लीजिए 100 है, और या 1 है, जो भी आपको कहना है। और जब आपकी बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज होती है तो आपका SOC 0 है या 0 है। एंड ऑफ कोर्स रियल लाइफ में आप 0 तक कभी आते नहीं हैं, आप you limit the discharge till 10% or 15%, whatever it is. But होता क्या है कि the amount of power that is available at high SOCs is not the same amount of power that is available at low SOCs. तो जैसे आपका SOC कम होते जाता है वैसे पावर अवेलेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। सिमिलरली जैसे आपकी बैटरी डिग्रेड होती है, राइट, आज आपके पास नई बैटरी है समझिए, तो आप शायद X अमाउंट ऑफ पावर निकाल सकते हैं बैटरी में से एट 100% SOC, बट 4 साल बाद आप उतनी ही पावर नहीं निकाल पाओगे। तो इसको कहते हैं पावर फेड, बाय द वे। तो जैसे आपका लाइफ फेड होता है वैसे आपका पावर भी फेड होता है। अब अगर आप सोचिए कि आपका इलेक्ट्रिक जो कमर्शियल व्हीकल है वो अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है वो ट्रक, और चार्ज उसमें बचा है 30%, और एकदम से वो पावर नहीं ड्रॉ कर पाया तो गाड़ी बंद पड़ गई वहाँ पे। अब हाउ टू अवॉइड दिस, हाउ टू डिज़ाइन योर व्हीकल इन सच अ वे कि इवन एट लो SOCs इट गेट्स द अमाउंट ऑफ पावर इट मे नीड, राइट, मिनिमम। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने कस्टमर्स को हेल्प की है। और एक कस्टमर था, उनको ये था कि ये जो AIS 156 होता है, थर्मल रनअवे का क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, तो ये होता है कि आपको आपका पैक सबमिट करना है, फिर द अथॉरिटी जो भी है ARAI या ICAT जो भी है वो टेस्ट करते हैं, और अगर फेल हो गया तो आपको वापस रीडिज़ाइन करना है, रीसबमिट करना है। उनका गोल था फर्स्ट टाइम राइट करना है हमें, तो लेट अस मेक श्योर कि पहली बार में पास होता है। सो वी हेल्प देम क्रिएट अ पैक विच वॉज फर्स्ट टाइम राइट। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स है, बट दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व्ड। जब आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं तो ऑब्वियसली 2 टीम्स होती हैं, एक तरफ ऊर्जा की टीम काम कर रही होती है और एक
R&D की या NPD न्यूटन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम होती है जो एक्चुअली वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप कर रही होती है, और आपकी टीम जाके उनको बोलती है कि भैया ये चीज़ ख़राब होने वाली है, या फिर आप बोलते हैं कि आपने डिज़ाइन बनाया है और सब एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स होते हैं टीम में, और वो बोलते हैं कि एक रोबोट डिज़ाइन बना के लाते हैं और आप बोलते हैं कि सिमुलेट करना है और वो उस पर डालते हैं, और आप बताते हैं उनको कि ये डिज़ाइन चलेगा नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कभी आप उनकी तरफ से चैलेंज फेस करते हो कि ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल, आई मीन देखिए ये तो होता ही है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी मैं कुछ चीज़ बनाता हूँ तो वो तो मुझे मेरे बच्चे की तरह होती है, और उसमें मुझे कोई खामी दिखती है नहीं। तो लोग कहते हैं कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये ठीक नहीं है, ये तो बढ़िया है। एक चैलेंज ये है ना कि मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस दैट वी डू, ये प्रेडिक्शन वैलिडेट करना भी इतना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि इसे प्रूव करने में आपके साल निकल जाएंगे, राइट? साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे बिफोर यू सी कि हाँ ये बात जो कही थी उन्होंने वो सच थी। तो ये चैलेंजेस आते हैं, एंड आवर गोल इज़ टू गिव कॉन्फिडेंस टू आवर कस्टमर्स, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि देखिए वो भी तो दे नो देयर बिजनेस बेटर देन वी डू, दे नो देयर प्रोडक्ट्स एंड डिज़ाइंस बेटर देन वी डू, इसमें कोई शक नहीं है, और उनका पर्सपेक्टिव है। तो एक तो बिफोर वी एंगेज विद एनीबडी, आवर गोल इज़ कि हम अच्छे तरह से समझ लें कि एग्जैक्ट आपका क्या आउटकम एक्सपेक्ट करते हैं, आपके क्या चैलेंजेस है, आपको अचीव क्या करना है, एंड देन इंश्योर कि वी आर अलाइंड विद देम। सेकेंडली, वी ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ होमवर्क ऑन आवर साइड टू इंश्योर कि हम जो भी सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं और फीचर्स डेवलप कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए, दे आर वैलिडेटेड। तो ये एक फर्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन तो होता है कि जो लैब में टेस्ट कंडक्ट करे उसके साथ वैलिडेट करे, तो हम वो करते हैं। और फिर दूसरा, ऑफ कोर्स द एसिड टेस्ट इज़ रियल लाइफ का वैलिडेशन जो हम हमारे कस्टमर के साथ करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ सेटिस्फाई देम कि येस जो हम बोल रहे हैं, जो आज आपको शायद दिखेगा नहीं बट 3 साल बाद दिखेगा, जो हम बोल रहे हैं आप उस पर विश्वास रख सकते हैं। Lovely, great. So version of 2022 of Urja software versus version of 2025. How do you say what changes you have done or what upgradation you have done? We want to understand that. श्योर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है टू मी। जैसे मैंने कहा कि अपना प्रोडक्ट अपना बच्चा होता है ना, सबके लिए, हमारे कस्टमर के लिए भी, और हमारा प्रोडक्ट हमारे लिए भी बच्चा है। और वो बच्चा पहले छोटा बच्चा होता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, टॉडलर हो जाता है, यंग एडल्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2022 में हमने शुरू किया, तब इनफैक्ट हमारा पहला वर्जन प्रोडक्ट का 4-5 महीने बाद ही रिलीज़ हुआ था। आज आई वुड से इट्स अ मच मोर मैच्योर प्रोडक्ट। इट इज़ मैच्योर बिकॉज हमने उतना टाइम इन्वेस्ट किया है, 3 साल लगातार डेवलपमेंट में वी हैव कंसिस्टेंटली एडेड फीचर्स एंड वी कंटिन्यू टू डू इट। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कस्टमर फीडबैक, आपकी तरह जो हमारे इनिशियल कस्टमर्स है, वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम देम। एंड हमारा जो डेवलपमेंट फिलॉसफी है, देखिए वी आर इन अ स्पेस वेयर वी आर competing with global giants. हमारे competitors are multi-billion-dollar companies from Europe and the US. Our niche is to focus on what we do right. And what we want to do is ensure कि जो भी हम feature develop कर रहे हैं, it is to solve real life problems for our customers. And we are doing it one step at a time. So कई बार आप देखते हो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर होते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं, इनपुट आउटपुट फील्ड्स होते हैं। हमारा गोल है कीप इट सिंपल, बट इंश्योर कि अगर 3 चीज़ें कर रहे हो, 3 फीचर है, तो वो 3 फीचर बिजनेस इम्पैक्ट कर रहे हैं कस्टमर के लिए। दैट इज़ द ट्रांजिशन दैट यू विल सी इन आवर सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द ग्रोथ दैट यू विल सी इन आवर सॉफ्टवेयर। तो आज जो है वी आर फोकसिंग ऑन सॉल्विंग क्लियर प्रॉब्लम्स। उनमें से सबसे पहला प्रॉब्लम है कि हमारे जो लार्जर कस्टमर्स है, दे वर्क विद अ लॉट ऑफ डेटा। अब उनको वो डेटा, आपकी फ़ाइल जो होती है, दे कैन बी 20-30 GB फाइल्स, बड़ी बड़ी फाइल्स होती है। कई बार क्या होता है कि 10 फाइल होती है और आपको अभी देखना है कि यार ये अरेंज कैसे करें, इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करें। सो हमने टूल्स क्रिएट किया है जहाँ पे आप विद अ क्लिक ऑफ अ बटन
you can get all of the meaningful information about your cells from your files. Next is accelerated life testing. तो जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं दे कैन बी 2-year प्रोग्राम्स एक सेल के लिए. हाउ डू यू गेट दैट 2 years डाउन टू 6 months? ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तीसरा है वारंटी का प्रॉब्लम कि मैं OEM हूँ, मुझे पैक वारंटी देनी है, और यूजुअली जो लार्ज बैटरीज होती है उनकी वारंटी पीरियड होती है 8 साल 10 साल, आजकल 12 साल तक जाने लगी है. तो आपको ये गारंटी देनी है, या एटलीस्ट ये रिस्क एनालिसिस करना है कि अगर मैं 12 साल की वारंटी दे रहा हूँ तो इसमें से कितना फेलियर आ सकता है. एग्जैक्टली. तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, थर्मल रनअवे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फोकसिंग ऑन राइट नाउ. मैं अगर आपके वर्ड से पिक करता हूँ तो वारंटी कितनी सेट करनी है? एक प्रोडक्ट बना तो लिया, उसकी वारंटी कितनी रखनी है, वो उसको एनालाइज करके सेट करने के लिए वो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, राइट? फिर आपने बोला कि थर्मल रनअवे ना हो उसके लिए आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हो, या आप एट ए वेरी अर्ली स्टेज पे आप समझते हो कि डिज़ाइन में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं हो जिसकी वजह से बैटरी में कभी भी थर्मल रनअवे हो जाए, राइट? सो बेसिकली आप ये काम करते कैसे हो? हाउ डज दैट सॉफ्टवेयर वर्क? इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ डेटा एंड फिजिक्स, लाइक आई सेड, हमारे सॉफ्टवेयर में. क्योंकि होता क्या है ना कि बैटरी पैक जो है ह्यूज बैटरी पैक होता है. इट कैन बी कई, जैसे बड़े ट्रक और बसेस में इट कैन गो अप टू 1 ton, द वेट ऑफ द बैटरी पैक इटसेल्फ. बड़ी बैटरी पैक्स होती है एंड यू नीड टू प्रेडिक्ट कि इस बैटरी पैक में क्या होने वाला है. एवरीथिंग दैट हैपन्स इन अ बैटरी पैक इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट हैपन्स इन अ सेल, है ना. दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ बैटरी. और ये सेल जो है ये है ना आपके, इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर मटेरियल, इट्स नॉट लाइक स्टील और कॉपर और एलुमिनियम. क्योंकि सेल अगर आप देखोगे तो आप अगर सेल को कट करते हो तो उसके काफ़ी लेयर होते हैं, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और कोई एनोड कैथोड सेपरेटर होता है, फिर कुछ बाइंडर्स होते हैं, मतलब कोई केमिकल डालते हो टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेल. इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है. ये सेल होता है. तो और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, राइट? क्योंकि अ सेल इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस, और दैट इज़ हाउ इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. कि कोई रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. यस. और ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, क्योंकि अभी ये देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल रिएक्शंस हैपनिंग, मैकेनिज्म्स ऑफ बोथ, जो लिथियम आयन्स होते हैं जो कैथोड से एनोड और फिर वापस जाते हैं, विच इज़ हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड. बट साइड रिएक्शंस होती है जिससे हीट जनरेट होती है, जिससे आपका सेल डैमेज होता है. अब ये सब जो है ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, और ये हम प्रेडिक्ट करते हैं बाय सॉल्विंग व्हाट इज़ कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल्स इक्वेशंस. तो वी एक्चुअली मॉडल की सेल के अंदर क्या रिएक्शंस हो रही है, साइड रिएक्शंस क्या हो रही है, गैस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इवेंचुअली लीड्स टू सेफ्टी इश्यूज़. ये साइड रिएक्शंस जो होती है वो they can create a short circuit between the two electrodes within a cell. That is what eventually leads to an explosion. Gas formation होता है, ऑक्सीजन फॉर्म होता है सेल के अंदर. जब शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्क होता है, उसको ऑक्सीजन मिला अंदर और फिर एक्सप्लोजन हो गया. तो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स हैपन. हमारा सॉफ्टवेयर जो है इट कैन बी यूज टू एक्चुअली मॉडल ऑल ऑफ दीज मैकेनिज्म्स टू अंडरस्टैंड कि किस सर्कमस्टांस में रिएक्शंस एक्सेलरेट होगी, कितना गैस अवेलेबल होगा, प्रेशर क्या है इस पैक के अंदर, सो दैट यू कैन देन इंश्योर कि वॉल्व कोई सेफ्टी मैकेनिज्म है तो क्या, हाउ डू यू रिलीज द प्रेशर, या ये कैसे आप क्या स्पेसिंग रखेंगे आप सेल्स की, ताकि अगर एक सेल थर्मल रनअवे में गया तो इट डजेंट स्प्रेड द थर्मल रनअवे टू द सेल्स अराउंड इट. ये सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स मॉडलिंग. सिमिलरली वारंटी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती है. ये रिएक्शंस की वजह से एनोड डिग्रेड होता है, कैथोड डिग्रेड होता है. डिग्रेड होता है का मतलब क्या है कि होता क्या है कि ये जो एनोड होता है वो ग्राफाइट या सिलिकॉन ग्राफाइट का होता है, राइट? इट्स अ पोरस स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जाके लिथियम आयंस बैठते हैं. As the cell ages, because of various side reactions, the amount of lithium that can go inside the cathode or the anode, most importantly, reduces.
और इसके वजह से आपकी कैपेसिटी कम होती है. ऑल्सो लिथियम साइड रिएक्शंस होती है, तो द टोटल अमाउंट ऑफ लिथियम अवेलेबल रिड्यूसेस एज वेल. तो ये कई सारी चीज़ें होती है, बट हम ये सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं और ये यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेल लेवल पे और फिर पैक लेवल पे आपकी कैपेसिटी कैसे डिग्रेड होगी, पावर अवेलेबल कैसे डिग्रेड होगी, और इस बेसिस पे यू कैन कम अप विद अ वारंटी विद फर्स्ट प्रिंसिपल्स मॉडलिंग. जब हम बात करते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की, राइट, तो बड़े बड़े जायंट्स हैं जैसे आपने बोला, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वाइडली यूज्ड हैं उनके सॉफ्टवेयर्स, राइट. सो वेयर डू यू सी मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर एंड गोइंग ग्लोबल एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशंस में? तो क्या इंडिया के बने हुए सॉफ्टवेयर या जब प्रोडक्ट है वो अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट होंगे या हो रहे हैं? व्हाट इज़ द स्टेटस राइट नाउ? ग्रेट, आई मीन दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे. आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर हम कस्टमर को वैल्यू देते हैं देन आर प्रोडक्ट्स विल बी अडॉप्टेड, right? And you have examples. I mean, like I said earlier, companies like Zoho, today it is I think a world-renowned company. So for sure, the answer is कि बिल्कुल होंगे. The question is कि who will be successful and how will we become successful? And there's a lot of, even in this 3 साल की ये जो जर्नी है हमारी, उसमें there have been a lot of learnings. I mean, देखिए, in any startup, speed bumps तो बहुत आते हैं. And challenges काफ़ी आते हैं. I think the satisfaction is overcoming these challenges. When it comes to really selling the product, in I would say Western nations, this is our journey. We like I said, I'm happy to say that we have some customers in Europe and the US. For sure, it's not easy. Yeah, the biggest challenge is ensuring that we give them the confidence that the software delivers. The software delivers value, right? It's as simple as that. I mean, there are cases where, coming from India, the scrutiny is higher. कि ठीक है, ये बोल तो रहा है कि ये होता है, ये होगा भी या नहीं, बट होगा या नहीं होगा. What does it mean कि you have to persevere, you have to invest more in validation, you have to invest more in the entire sales cycle. The sales cycle is longer. So these are the things that we have to face. Well, we have to we have to adapt to, is what I would say. अच्छा. And that is what we are in the process of doing. But for sure, I am very convinced about this कि अगर value दिखेगा तो our products will be adopted. The pathway is very clear to me. Great. So हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन रखा कि 30% या उससे ज़्यादा नए व्हीकल्स 2030 में जो बिके वो इलेक्ट्रिक हों, राइट. सो इंडिया वांट्स टू बिकम एन EV लेड नेशन, राइट. हम पोल्यूशन कम करना चाहते हैं. तो 2 सवाल है मेरे पास अभिनीत आपके लिए कि आप कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती है जब आप EV इंडस्ट्री के बहुत सारे प्लेयर्स से मिलते हैं, आप एक्सटर्नली काम करते हैं उनके साथ में, या ठीक है, प्रोडक्ट डेवलप कराने में हेल्प करते हैं, तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, मे बी नॉट टुडे बट टुमारो, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद सॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपका कोर एरिया नहीं है, लेकिन आप दूसरे फाउंडर से एक्सपेक्ट करते हैं या अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, राइट? ओके, ग्रेट. सो आई थिंक इट्स अ लवली क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो पहले तो आई विल टॉक अबाउट हम क्या सॉल्व करना चाहते हैं. एंड लाइक आई सेड, हम ये सॉल्व करना चाहते हैं कि मेरे लिए है ना, ये जो न्यू एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो EVs हो या काफ़ी सारी है, जैसे फ्यूल सेल्स हो, व्हाटएवर इट इज़, दिस टू मी एनर्जी इज़ द न्यू गोल्ड रश. जैसे आई थिंक 17th या 18th सेंचुरी में जो US में गोल्ड रश हुआ था, जहाँ पे सब लोग कैलिफोर्निया में गए थे और बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया था और बहुत सारी नई चीज़ें हुई थी. आई बिलीव दैट इज़ वेयर वी आर इन एनर्जी राइट नाउ. ओके. कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. ऑफ कोर्स एक तो है कि क्लाइमेट चेंज को हमें रोकना है, वो करना है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दिस डोमेन, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजी. एंड at Urja, our goal is to enable seamless, fast adoption of this new technology. ये हमारा गोल है, चाहे वो बैटरीज हो या कुछ और हो.
राइट, We started with batteries. डिफरेंट केमिस्ट्री ऑफ बैटरीज भी हो सकती है. Of course, already we are working. तो अभी we are working not only with lithium ion, but also sodium ion. But not just batteries. It could be motors. It could be fuel cells. Our larger vision is कि create, like I said, an interface where engineers can throw in an engineering problem. कोई भी engineering problem हो कि मुझे ये चीज़ optimize करके चाहिए and get feedback for it. और उसीलिए we want it to be throughout the ecosystem. So even with batteries, we started with early stage R&D, but today we have tools जो field से data लेती है and we give you prognostic insights. But not only that, we are able to funnel these insights back into the R&D stage so that your next version of products is intelligent. Same and will be more intelligent. Correct. Similarly, जो हम यहाँ सीखते हैं, throw this intelligence at the beginning of the design stage quickly onto the field by ensuring कि आपके जो physics based models है, they can be quickly programmed into the BMS ताकि आपका जो field पे product है, it's smarter. So our goal really is to close this whole loop, not just for batteries, but across different engineering systems. Okay. Right? So that is the answer to your first question. दूसरा सवाल जैसे आपने कहा कि ecosystem में opportunity. See, I think कि एक बड़ी opportunity and which we don't solve, but I would love for somebody to solve. इसकी आप ये देखिए कि आज जब किसी को भी EV खरीदनी होती है तो लोन लेना पड़ता है. एंड आज एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोन देते हैं लीजिंग कंपनीज, राइट, बैंक्स, NBFCs और whoever the leasing company is, they don't know how to price their product. उनका प्रोडक्ट तो it is the loan, it's the money, and they don't know how to price it today. See, we have figured out how to price real estate, we have figured out how to price IC engine vehicles, but we have not figured out how to price EVs. EVs में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बैटरी, क्योंकि 40 between 30 to 50% of your entire vehicle cost is the battery cost. लीजिंग वेंडर को ये पता नहीं है कि ये बैटरी कितने साल चलेगी, राइट? तो उसी लिए लोन्स आर एक्सपेंसिव. बिकॉज लोन्स आर एक्सपेंसिव इट हर्ट्स एडॉप्शन, राइट? क्योंकि फिर प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं. अब लोन्स क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिस्क. आज द लीजिंग कंपनी इज टेकिंग अ हायर रिस्क. बाय द वे, इवन व्हेन इट कम्स टू रीसेल वैल्यू, कमिंग टू दैट, यस, यू नो, एक साल में EV का रीसेल वैल्यू 50% डेप्रिशिएट होता है. तो इट्स ऑल अबाउट द क्रेडिट रिस्क. सो द प्रॉब्लम इज कि टुडे इट इज़ ओनली अ क्रेडिट रिस्क बिकॉज वी डोंट नो द टेक्नोलॉजी. सो आई वुड लव फॉर सम financial partner to come up with a technology risk that they can provide as a product, which can enable the leasing cost of EVs to come down. So आप बहुत सारी EV कंपनीज के साथ में अभी काम कर रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियसली EV अडॉप्शन हम सबका गोल है कि हम मैक्सिमम EV अडॉप्शन इंडिया में लेके आए, राइट? एंड विजन सेट करना, पॉलिसी सेट करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, वो गवर्नमेंट का काम है. डेली हसल और जो ट्रांजिशन लेके आना है वो हमारे जैसे फाउंडर्स जो हैं वो ऑन द ग्राउंड कर रहे हैं, राइट? तो कहाँ पर आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को और थोड़ा पुश करना चाहिए? वेयर डू यू फाइंड दैट गैप एंड वेयर डू यू सी कि अगर पॉलिसी में ये सारी चीज़ें अगर ऐड हों, ब्रिंग अ बिगर अडॉप्शन, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू have, that's why I'm asking you a question. Very challenging question, I must say, क्योंकि you always feel like the government should do more. But on the other hand, as an entrepreneur, I also believe कि you have what you have. The playing field is in front of you. You make the most of the opportunities you have. Especially when it comes to batteries and EVs, we have an opportunity. Let me put it this way. What is that opportunity? कि this is a new technology. It's a level playing field today. And you can see the evidence of that in the US कि एक नई कंपनी, you know, the automotive industry is an industry of giants, है ना? अगर आप देखें for the past 50, 60, 80 years, तो it is the big companies who always win. चाहे वो GM हो, जनरल मोटर्स है, Ford, GM,
पहले क्राइसलर होती थी या फिर टोयोटा होंडा, बट आप देखिए कि जब ईवी रेवोल्यूशन आया तो 10 साल में यंग स्टार्टअप्स आर डिस्प्लेसिंग ह्यूज बेहेमॉथ्स, क्योंकि पूरा डिसरप्शन है। BYD Right. है, टेस्ला है। बिल्कुल, टेस्ला है, BYD है, ऐसे बहुत ही एग्जांपल है। इंडिया में भी टू व्हीलर इंडस्ट्री में आप देखिए तो इट्स द इथर है, ओला है, बिल्कुल जायंट्स को बीट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये अपॉर्चुनिटी है, राइट? इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड समथिंग दैट आई स्ट्रांगली बिलीव इन इज कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ लॉट विद डेटा टुडे। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम वर्ल्ड ओवर, इट्स नॉट एन इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम। समझो आपने इलेक्ट्रिक कार खरीदी है, आपने कार के पैसे दिए, आप कार चलाते हो, हु ओन्स द डेटा, राइट? अब इसमें और एक लेयर ऐड कर दीजिए, कमर्शियल व्हीकल है तो OEM ने कार बनाई है या OEM ने ट्रक बनाया है, 3 व्हीलर बनाई है, लीजिंग कंपनी के बुक्स पे वो व्हीकल है, और फिर एक कोई यूज़र यूज़ कर रहा है उसे, या कोई फ्लीट कंपनी है एंड देन अ यूज़र। हु ओन्स द डेटा, राइट? आज दैट इज़ अ ग्रे एरिया, है ना? द एंटायर इकोसिस्टम डज नॉट हैव एक्सेस टू द डेटा। जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इस ईवी के वजह से, उनके पास डेटा की एक्सेस नहीं है। एंड डेटा गिव्स यू पावर, राइट? डेटा बाय इटसेल्फ परहैप्स इज यूजलेस, बट व्हेन यू हैव द, ये जैसे लोग कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन इज पावर, डेटा इज इन्फॉर्मेशन। आपके पास अगर डेटा है तो यू कैन यूज इट टू बेटर टेक बेटर डिसीजंस, यस। और वो मिसिंग है अभी सिस्टम में से। तो अगर गवर्नमेंट ये क्लैरिटी लाता है, अगर गवर्नमेंट ये इंश्योर करता है कि थ्रू आउट द इकोसिस्टम सबको फेयर एक्सेस है डेटा का, राइट? एंड अगेन फेयर का डेफिनेशन क्या है हमें खुद डिसाइड करना है, बट इकोसिस्टम प्लेयर्स के पास डेटा का एक्सेस है, तो दैट विल क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड विच कैन, आई बिलीव इट कैन ट्रांसफॉर्म द EV इंडस्ट्री। I completely agree with this. I want to understand what is the need, मतलब from the audience perspective, right? बिल्कुल। Audience want to understand कि उन्होंने इन्वर्टर बैटरी खरीदी है, वो एक वॉल फैन खरीदते हैं, राइट? वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हैं, और वहाँ एक सीरियल नंबर होता है, राइट? वो उसकी आइडेंटिटी होती है ना? तो आधार की क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ बैटरी आधार, और Sure. इसका रिक्वायरमेंट ही क्यों है? श्योर, ग्रेट। आई मीन देखिए, ओके, आई गेट योर क्वेश्चन। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऑफ कोर्स बोथ आर बैटरीज, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि इलेक्ट्रिफिकेशन एज मच एज इट इज़ फॉर क्लाइमेट चेंज, इट इज़ ऑल्सो ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू कंट्रीज। आज Okay. सबको इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों करना है? क्योंकि दैट इज़ योर ऑल्टरनेटिव टू ऑयल। Oil. you want to reduce your dependence on oil. ये जो lithium ion batteries है, and the reason they are very different from lead acid batteries is the minerals which are used in lithium ion batteries. Lithium ion batteries में lithium is very important, but it is a small component of the battery, है ना? Not more than 5% of the battery is lithium. But you also have some other rare earth metals like cobalt, nickel, बहुत महंगे minerals है ये सारे। और ये भी अभी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो गया है इनका, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ ने दे हैव बॉट माइंस ऑफ दीज मिनरल्स। Yeah. तो या फिर लॉन्ग टाइम राइट्स हैं उनके पास। राइट्स है उनके पास। सो द गोल इज़ कि ठीक है, हमने मिनरल्स खरीदे, बैटरीज बनाई हैं, अब वो जब नई बैटरीज खरीदनी है, हाउ डू वी एंश्योर दैट द मिनरल्स डोंट लीक आउट ऑफ आवर सिस्टम? क्योंकि अगर आपने यूरोप में बैटरीज यूज़ की, तो लेड एसिड बैटरीज में क्या होता था, रिसाइकलिंग के लिए यू कैन जस्ट शिप देम ऑफ टू साउथ एशिया, है ना? यहाँ पे भी आप वो कर सकते हो, यू कैन शिप द बैटरीज टू साउथ एशिया और टू चाइना, बट फिर होगा क्या कि वो मिनरल्स आपकी बाउंड्री से बाहर चली जाएंगी, एंड देन यू विल हैव टू बाय देम अगेन एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस। सो द गोल इज़ कि जो मिनरल्स अपने सिस्टम में आए हैं, लेट्स कीप देम देयर, लेट्स स्टॉप देम फ्रॉम लीकिंग आउटसाइड द सिस्टम, और उसके लिए आधार की ज़रूरत है। उसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के लिए बैटरी बिल्कुल, बिकॉज देन वो आधार एक बार हो गया तो देन यू नो कि ये बैटरी अभी इंडिया में आ चुकी है,
नाउ आवर गोल इज़ कि इट शुड नॉट बी मिसयूज. एक तो मिसयूज़ है क्योंकि बैटरीज, batteries are an energy device. They are full of energy. They can explode. You don't want batteries to be misused. So you want accountability when they are in the system. And when they are moving out of the system, you want to ensure that they don't leak out of your system. इन सारी चीज़ों के लिए आधार बहुत ज़रूरी है. द अदर थिंग इज़ कि इंडिया में देयर इज़ ऑल्सो ग्रेट पोटेंशियल फॉर अ स्वॉपिंग इकोसिस्टम, है ना. वेस्ट में तो स्वॉपिंग आप ज़्यादा देखते नहीं हो, but you will see that in Southeast Asia swapping is big, and India maybe now you will see that it's picking up. Right, and it has a great potential and opportunities outside just mobility. तो ये एक बार स्वॉपिंग इकोनॉमी अपनी खुद से एक इकोनॉमी हो सकती है जहाँ पे नॉट ओनली डू यू यूज़ इट फॉर मोबिलिटी एप्लीकेशंस, बट आज जैसे आप देखते हो कहीं करंट नहीं है तो मैंने स्कूटर से बैटरी निकाल दी और रात में वो लगा दी पढ़ने के लिए जहाँ पे करंट नहीं है. तो इट कैन रियली ओपन अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. मैंने अपना जो रोड साइड ठेला है उस पर बैटरी लगा दी और मैं बेचना शुरू किया, कुछ जो मैं पकोड़े बेच रहा हूँ, फिर वापस लगा दी और घर चले गए हम. तो ये इकोसिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, बट ये करने के लिए वी नीड टू इंश्योर कि वी आर प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम एनी डेंजर दैट द बैटरी में पोज, और उसके लिए ये आधार बहुत ज़रूरी है. 17 साल आपने एक स्वीडिश कंपनी में काम किया, 10 साल आप यूएस में रहे हैं, राइट. और ये सब करने के बाद में एक प्लंज लेना, जंप लेना टुवर्ड्स लिविंग ए हाई पेइंग जॉब, वहाँ से स्विच करके आप जब स्टार्टअप चालू करते हो तो मेरे हिसाब से इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ट, राइट, हार्ट एंड दिस थिंग करेज, राइट. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी ऑफ ट्रांजिशन. श्योर. सो देखिए, ये तो बहुत पहले से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे खुद So कुछ करना है. Did you come from business background then? Your family comes from business background? नहीं, आई डोंट कम फ्रॉम. माई फादर इज़ मेरे पिताजी जो है ये सीड इंडस्ट्री से आते हैं और वो उन्होंने भी इनफैक्ट उन्होंने जेके ग्रुप के लिए एक सीड कंपनी खुद शुरू की थी. अच्छा. सो बट दैट्स द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम. आई ऑलवेज हैड दैट अर्ज कि यार खुद से कुछ करना है. मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे मैंने कहा कि मैं यूएस गया था पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए, और तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे आगे वापस इंडिया में जाना है, मुझे यहाँ पे तो सेटल होना नहीं है. और लाइक आई सेड कि जो इंडिया में इतना टैलेंट पूल है, सबको एक साथ लाके कुछ बड़ा करना है, ये तो मुझे करना था. एक छोटा सा किस्सा विच वाज लाइक विच स्पर्ड मी. मैं जब यूएस में काम कर रहा था, मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, दोस्त अभी भी है, वेरी शार्प गाय, और हम काफ़ी करीबी दोस्त थे, हम बात भी करते थे, बहुत एक साथ काम करते थे. तो वो मुझे एक दिन कह रहा था कि मैं जब पिछली कंपनी में था तब मैं काफ़ी इंडियंस के साथ काम करता था क्योंकि हमारी एक सब्सिडरी इंडिया में थी और मैं उनके साथ काम करता था. मैंने बोला अच्छा क्या काम करते थे? तो उसने बोला जो काम मुझे बोर होता था वो मैं इंडिया को देता था और सब जो एक्साइटिंग काम है मैं खुद के पास रखता था. और उस दिन से वो जो कीड़ा था वो मेरे दिमाग में था कि यार दिखाना है कि इंडिया में भी एक्साइटिंग काम हो सकता है ना. ये नहीं है कि जो बोरिंग काम है वो आप वहाँ पे दो, क्योंकि वहाँ पे तो हज़ारों लोग हैं जो बोरिंग काम कर देंगे, और हम जो है वो इंटरेस्टिंग काम जो क्रिटिकल आईपी जो होता है वो हम बनाएंगे और फिर बाकी. ये मुझे चेंज की. तो उस दिन से वो मेरे दिमाग में वो हो रहा था कि करके दिखाना है कि इंडिया से अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें हो सकती है, आईपी जनरेशन हो सकता है. ऑफ कोर्स ये टू ब्रिंग दिस टू फ्रूइशन, ये रियलिटी बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगा मुझे, बट दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड. एंड देन लाइक आई सेड, मैं इंडिया आया, वी स्टार्टेड doing some exciting things out of India. We were creating some really good, we are getting good work done out of India. But वो हमेशा कहीं ना कहीं पे था कि यार ये आईपी अपना नहीं है, वो चेंज करना है. तो वो तो था, मुझे तो पता था वो करना है, तो वो बस बात ये थी कि कब शुरू करना है. तो किसी दिन मैंने डिसाइड किया कि चलो अब और कितना रुकोगे, लेट्स स्टार्ट. एंड दैट वाज द जर्नी. सो सिंस इट वाज वेरी क्लियर टू मी व्हाट आई वांटेड टू डू, बस देयर वाज नो फियर. लवली. तो हमेशा स्टार्टअप की जर्नी में एक टिपिंग पॉइंट आता है जब काफ़ी सारी पावर्स आगे मिल जाती है, मैं ऐसा बोलता हूँ इसको,
कि एक तरफ आपकी पिछले 10 साल की 15 साल की मेहनत है जो किसी भी मे बी डिफरेंट जॉब में आपने की है, एक तरफ आपने एक नया आइडिया जनरेट किया जिसके ऊपर आप काम करना चालू करते हो, एक तरफ कुछ नए टीम मेंबर्स आते हैं, वो बताते हैं कि हमसे ज़्यादा बेटर एनर्जी के साथ में आते हैं कि सर ये करते हैं, साथ में ही करते हैं। और मार्केट की अपॉर्चुनिटी जब हम स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तब दिखाई देती है, राइट। ये सारी चीज़ें मिलके और एक समय आता है जब हम काम कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, हमें लगता है दिस इज़ गोइंग टू बी बिग। तो ऐसा कब हुआ, ये मोमेंट ऊर्जा में कब हुआ, मैं वो जानना चाहता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई डोंट नो, आई मीन काफ़ी सारे मोमेंट हुए हैं एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे मोमेंट होंगे भी इन द फ्यूचर, बट आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट तब था जब हमारा एक बड़ा कस्टमर है, उन्होंने पब्लिकली एक इवेंट में, एक पब्लिक इवेंट में, वेबिनार में उन्होंने कहा कि देखिए हम इनके साथ, ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, पिछले साल से काम कर रहे हैं इनके साथ, एंड दिस इज़ द वैल्यू दैट वी हैव गॉट आउट ऑफ देम, और ये बढ़िया काम कर रहे हैं। जब कस्टमर से वैलिडेशन आया, आई थिंक टू मी दैट वाज अ ग्रेट, दैट वाज द बेस्ट फिलिप और कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट, एंड आई कुड सी कि नॉट जस्ट मी बट हमारी पूरी टीम में एनर्जी आ गई। आई कुड सी द डिफरेंस इन द एनर्जी इन द टीम। नॉट ओनली दैट बट द वे दूसरे कस्टमर हमारे साथ बात करने लगे उस पब्लिक एक्नॉलेजमेंट के बाद, आई कुड सी अ चेंज इन दैट एज वेल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तब आपको ये लगा होगा कि ये तो हम एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे ही हम हज़ारों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो विनीत, भारत में अगर ईवी का अडॉप्शन बढ़ाना है और प्लस बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है ताकि उसके प्राइजेस को कम लाया जा सके, बहुत सारे बिजनेसेस की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या MSMEs हैं, वो अगर इसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाएं इस इंडस्ट्री में, तो ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो सकती है, क्योंकि उसका इंटेंशन ये होगा कि प्राइजेस कैसे कम करने हैं, कॉस्टिंग कैसे कम लानी है। बिल्कुल राइट। लेकिन एक चैलेंज उनके पास जब आता है कि टेक का एक्सेस ना होने की वजह से, या टेक जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वहाँ एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। राइट। अगर वो इजीली अवेलेबल हो जाए, जैसे आपने डेमोक्रेटाइजेशन की बात करी डाटा के बारे में, बिल्कुल सिमिलरली अगर टेक उनके पास अवेलेबल हो जाता है एट ए रीजनेबल प्राइस, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। बिल्कुल। राइट। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस, और क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये अवेलेबल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे? श्योर, आई मीन excellent question, thanks for asking it, and by the way I am completely on board with what you're saying. ये सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो SMBs है या स्टार्टअप्स है जिनके पास you know who have the determination, who want to change the world, they don't have, like you said, access to tech. Tools are expensive. Even हमारा जो tool है सस्ता नहीं आता है. It's you know it's not easily accessible to a small young business. नॉट जस्ट द टूल कॉस्ट, बट इशू क्या होता है ना कि अगेन ये हाई टेक है, डीप टेक है, नई टेक्नोलॉजी है, तो टू मेक सेंस ऑफ व्हाट यू सी अराउंड यू, यू नीड एक्सपर्ट्स हु आर ऑल्सो नॉट चीप। एक तो कम एक्सपर्ट्स है और जो है वो कॉस्टली है बहुत, और उनको टाइम भी लगता है डिलीवर करने के लिए। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड। आप पहले पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सो अमंगस्ट मैनी अदर थिंग्स वन इनिशिएटिव दैट द MHI हैज़ कम अप विथ इज़ अलॉन्ग विथ ARAI। तो ARAI के साथ द MHI हैज़ कम अप विथ समथिंग कॉल्ड द CEFC, इट्स कॉल्ड द कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर। ये होस्टेड है ARAI में। आज ARAI आप सबको पता होगा, इट्स पुणे बेस्ड, बट नाउ दे हैव ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। आप बैंगलोर में भी ARAI है, नॉर्थ ईस्ट में भी ARAI है, एंड दे हैव कम अप विद दिस कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटीज सेंटर, जिसका एम इज़ टू एनेबल स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स टू गेट ईजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। सो दे हैव क्रिएटेड दिस कॉमन फैसिलिटी जहाँ भी आपको जो भी लगता है व्हीकल डिज़ाइन करने के लिए, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, वो है। आप आइए, आपका काम कीजिए, आपके पास एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल होंगे वहाँ पे, एंड यू गेट ऑल ऑफ दिस डन। कोइंसिडेंटली वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ CEFC, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर स्वीट है इट इज़ इंस्टॉल्ड इन CEFC और इट इज़ ओपन टू SMBs एंड स्टार्टअप्स। आप जाइए, आपको वहाँ पे हार्डवेयर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी है, सॉफ्टवेयर भी है, काम कीजिए और
जितना मैंने समझा है तो देयर इज़ अ टोकनाइजेशन काइंड ऑफ द कंप्लीट थिंग, जहाँ पर मान लीजिए एक टेस्टिंग मशीन को खरीदने के लिए अगर आपको 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो वो आपको कम्प्लीटली ओन नहीं करनी पड़ती, बट एक आप सर्टेन टाइम के लिए आप उसको वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ ऐसा ही है, राइट? बिल्कुल, आई मीन यस, यू पे एंड यूज देयर फैसिलिटीज। टोकनाइजेशन है, यस इट इज़ टोकनाइजेशन। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एमएसएमई की पार्टिसिपेशन अगर बढ़ेगी तो कॉस्टिंग्स कम लाने में हेल्प मिलेगी, और जितना लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस में और उतनी ज़्यादा अडॉप्शन जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इनफैक्ट हमारा लॉन्ग टर्म बिलीफ ये है, एंड इनफैक्ट वेरी स्पेसिफिक टू आपका जो ये एमएसएमई एंड द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है, हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जैसे चैट जीपीटी है, आज आप उसको सवाल पूछो वो आपको जवाब देता है। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ चैट जीपीटी फॉर बैटरीज। ओके। और उसमें दिक्कत यह है कि आपको काफ़ी डेटा लगता है ट्रेनिंग के लिए। हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक बड़ी सी ट्रेनिंग डेटाबेस बनाए, ताकि वो डेटाबेस है फिर एसएमबी आए और बोले कि ये बैटरी है, ये मुझे चाहिए, और हम आपको वो रिजल्ट दें। इट इज़ अबाउट 3 to 4 years अवे, बट वो आएगा। Lovely. Vineet, there are a lot of students who are my audience and who are into currently doing their engineering maybe, and they want to become a part of EV industry, right? Or they want to become a part of Urja maybe. A lot of people want to start something like Urja. So what is your suggestion for them? 4 years generally what an average student thinks is 4 year का मुझे डिग्री में करूँगा और मुझे एक ठीक ठाक सी जॉब मिल जाएगी। कैन यू शेयर समथिंग फ्रॉम योर टोटल एक्सपीरियंस ऑफ सच अ बिग एक्सपीरियंस यू हैव ऑलरेडी? What a small change they can do and get a good job into EV segment. Apart from that, how can they make a good career? We generally are pitching that only bookish knowledge is not sufficient. What other things they need to inculcate so that they are able to make a good career? देखिए, मैं तो इस बिलीव से आता हूँ कि एन्जॉय व्हाट यू डू और फिर करियर खुद ब खुद बन जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, और मैं जब अपने आसपास लोगों को देखता हूँ who have excelled at what they are doing, I have always seen कि जब आप किसी चीज़ को enjoy करते हो और उस चीज़ को आप आपका करियर बनाते हो, तो फिर जो कामयाबी है वो अपने आप आ जाती है, फिर आपको कामयाबी ढूंढनी नहीं पड़ती है, राइट? या तो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। लाइक आई सेड अगेन इन द पास्ट, EVs, आप उसको EV कह सकते हो या the larger energy sector, क्योंकि batteries are not just for EVs. Let's be clear. आप देखेंगे आज बैटरीज हर जगह है, अपने हाथ में है, अपने जेब में है, दिलों में भी बैटरी है ना, और पावर बैकअप बैटरी है, खिलौने में बैटरी है, सब जगह बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, अपॉर्चुनिटी है कि, एंड दिस अगेन आई हैव सीन, क्योंकि हम काम करते हैं ग्लोबल कस्टमर बेस के साथ, तो मैं देखता हूँ कि ये जो लैक ऑफ स्पेशलिस्ट चैलेंज है ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। यू विल सी दिस वर्ल्ड ओवर, सबको यही प्रॉब्लम है कि लोग नहीं मिल रहे हैं जिनके पास ये स्पेशलाइजेशन है। अपने पास वो भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वी हैव सच अ ग्रोइंग वर्कफोर्स, पोटेंशियल वर्कफोर्स, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू फिल द वर्ल्ड्स नीड, नॉट जस्ट इंडियाज़ नीड। तो अपॉर्चुनिटी है, बट यू शुड एन्जॉय इट। अगर आप केवल EV में कुछ करना है और उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे इस करियर में आओगे तो आप शायद कुछ कर पाओगे, बट अगर आपको जेन्युइन पैशन है, इफ़ यू फुल्ली अंडरस्टैंड कि यार इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, ये समझोगे, एंड इफ़ यू इमर्स योर सेल्फ इन टू दिस, देन आई विल टेल यू द अपॉर्चुनिटी इज़ ग्लोबल, इट्स नॉट लोकल, एंड you will always be working on the cutting edge of technology which has global relevance, so it's exciting. Right. So विनीत, इसके साथ में एक सवाल ये आता है कि आने वाले 5 से 6 साल में कौन सा ऐसा स्पेस है EV इंडस्ट्री में जिसमें हम चाइना को या कोई भी दूसरी कंट्री को हम एक्सेल कर रहे होंगे? You know, it's a great question. एक तो है कि when it comes to deep tech, the gestation periods are very long. तो it is very difficult to get quick results. आपको दूर का सोचना है। लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं, they will excel when it comes to deep tech. Let me say one thing, I mean, China has taken
very large strides in taking the leadership role in the whole battery space. This is a strategy which they started in the early 2000s, and they have invested billions and billions of dollars, right, into the battery technology space. So आपने देखा होगा कि today they are in the pole position. Does that mean that they cannot be dislodged? Obviously the answer is no, but it is going to take long-term vision, long-term strategy and determination to get ahead. One area where I believe we have a great edge is IT, information technology. जहाँ पे आप ये देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि how many software products have come out of India, and now you can start counting them at least. My next question is, how many software products have come out of China, right? Much fewer. And I believe we have an edge in software. So that is one thing where I believe we have an opportunity. वहाँ पे भी, by the way, the Chinese have taken long strides in coming up with some great algorithms across areas. आपने AI में भी देखा होगा, but in batteries as well. But when it comes to generalized softwares, I believe we have an opportunity there, and that is actually what we are trying to tap at Urja. Yes, great. So this was an amazing conversation with you, Vineet, and this is going to benefit a lot of people here. So Great. Thank you so much for your time, Vineet. Thanks a lot. I think it was I had a lovely time here. बहुत मज़ा आया आपसे बात करते हुए. 2 घंटे कैसे निकल गए पता भी नहीं चला. And होता क्या है ना, आप सवाल पूछते हो, कई बार it sparks new ideas. So I thoroughly enjoyed myself. Thanks a lot. Thank you, Vineet.